Today it is my first class in the fifth semester electronics. Here I taught you microprocessor and its application. Now microprocessor is made of two words. You can say that microprocessor it is a combination of two words, micro plus processor. Micro means what? Micro means smallest part. Means the size becomes several thousand times smaller and the speed becomes several hundred times faster. It is called micro. And processor means a device that processes whatever. In this context of microprocessor, we can say that processor is nothing but it means a device that processes numbers, especially binary numbers, 0 and 1s. And throughout the microprocessor, we have studied binary numbers and hexadecimal numbers. Now here we come to the exact definition of microprocessor. We differentiate between the microcomputer, microprocessor and microcontroller. These three words, we think that two words you are already familiar. Microcomputer. Now first word it comes from microcomputer. Microcomputer. Microcomputer is it is a computer with a microprocessor as its CPU includes memory, input, output, etc. माइक्रोकंप्यूटर आप लोग लैब में ऑलरेडी देखे हुए कंप्यूटर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट है और मेमोरी रहता है. नेक्स्ट वर्ड कम से माइक्रो प्रोसेसर. अब हम लोग माइक्रोप्रोसेसर डिफिनेशन पर आने से पहले माइक्रो प्रोसेसर का एक सिंपल वे में हम लोग डिफाइन करें तो इट इज ए सिलिकॉन चिप व्हिच इंक्लूड्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी दैट इज ए रजिस्टर circuit in which the register circuit that means flip flop extraction and the control circuits. So microprocessor it is a silicon chip which includes ALU, register circuits and control circuits. Now microcontroller क्या है? The microcontroller it is a silicon chips which includes microprocessor, memory and input output in a single package. That is called the microcontroller. So these are the three basic differences between the microcomputer, microprocessor and microcontroller. Now again we come to the topics of the microprocessor. In more precise we can define microprocessor is a programmable device that takes a number and perform arithmetic and logical. Arithmetic, what means arithmetic? Arithmetic means addition, subtraction, multiplication. Logical operation means that is the OR operation, AND operation. These basically is the logic operation. In a decision making, according to the program stored in the way. Program is nothing but it is a group of instruction which is inside in the memory and then produces a number. Means you can simply कह सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर क्या है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो क्या करता है तो इनपुट लेता है नंबर क्या लेगा तो 0 1 बिट्स के फॉर्म में यानी बाइनरी के फॉर्म में. इट टेक्स ए नंबर योर एंड परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अब ये जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, जो पहले से मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर किया गया है और जिस प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं तो उस पर वो प्रोसेस कर रहा है एंड देन प्रोड्यूसेस फिर
अगेन रिजल्ट देगा। अगर अरिथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो एडिशन के बाद रिजल्ट देगा, सब्ट्रैक्शन के बाद, जो भी हम लोग प्रोग्राम दे रहे हैं दैट प्रोड्यूसेस है नंबर एज ए रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर तो हम लोग पढ़ लिए, अब हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में जो पहला हिस्ट्री माइक्रो प्रोसेसर का जो स्टार्ट होता है, देखिए अब हम लोग देखिए हिस्ट्री ऑफ, now we have discussed the history of microprocessor. यार हिस्ट्री माइक्रोप्रोसेसर हिस्ट्री से पढ़ने से पहले हम लोग ये जाने कि पहले था कि ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर के बाद जब आईसी युग का इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो आईसी का इंट्रोड्यूस हुआ 1957 से लेकर 1959 में। आईसी जो है फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने बनाया था, और एक ही कंपनी उस समय जो थ्री मैन कंपनी से स्टार्ट हुआ था, और 1968 से लेकर और 1981 तक वो थ्री मैन का सेटअप द्वारा इंटेल के कंपनी को निर्माण हुआ था, जो कि फर्दर एक्सटेंशन होने के बाद उसमें 20,000 एम्प्लॉय वर्क किया और $188 मिलियन तक उनका कारोबार था। तो उसमें हम लोग जब अब आ जाते हैं हम लोग माइक्रोप्रोसेसर का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब माइक्रोप्रोसेसर जब आया मार्केट में, तो उसमें 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर। अब ये 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर के ग्रुप में इंटेल ने 2 माइक्रोप्रोसेसर बनाया था, जो इंटेल 404 और इंटेल 4040 यानी 4040। तो ये जो 404 था वो 1971 में इन्वेंशन हुआ था, और ये जबकि 4040 1974 में, 71 और 74 में था। ये 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर था, और इसका स्पीड जो था वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो कि 740 किलोहर्ट्ज था। नेक्स्ट उसके बाद डेवलपमेंट जब हुआ तो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ। इस 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर इन्वेंशन में 3 कैटेगरी का डेवलपमेंट हुआ, इंटेल 8008, इंटेल 8080, इंटेल 8085। जो हम लोग पूरे इस माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो इंटेल 8085 का डिटेल में पढ़ेंगे और 8086 का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोग 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर जो था, जिसमें 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर में इंटेल जो है 8008 वो 1972 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया था इंटेल के द्वारा, और ये 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर था, और इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी था 500 किलोहर्ट्ज था। अगेन इंटेल 8080 का इन्वेंशन हुआ, जो कि 1974 में हुआ, और ये भी 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, और इसका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी था 2 मेगाहर्ट्ज था। फिर अगेन उसके बाद इंटेल 8085 comes in the market. It was introduced in 1976, and it is also 8 bit microprocessor and clock frequency of 3 megahertz. इसमें 8 बिट डाटा बस था और 16 बिट एड्रेस बस था, जो कि आगे हम लोग फर्दर डिटेल जब 8085 का जब पढ़ेंगे पूरा तो वो कंप्लीट डिटेल होगा। नेक्स्ट इन्वेंशन हुआ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर में। 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर में पहला जो इन्वेंशन हुआ वो इंटेल 8086 का, जो कि 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर था, जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी अलग अलग वर्जन का अलग अलग था, 4.7 मेगाहर्ट्ज से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन वर्जन था। ये 16 बिट इसमें डाटा बस था, और एड्रेस बस जो था वो 20 बिट था इसमें। नेक्स्ट इसमें इंटेल 8088 880
जो 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, लेकिन ये चीपर वर्जन ऑफ था 8086 का। नेक्स्ट उसके बाद Intel 80186 and 8011, it comes in the market. It was introduced in 1982 and it is also 16-bit microprocessor और ये cheaper version था। बाकी से जो बिफोर में जो दो वर्जन आए थे यहाँ की Intel 8086 और Intel 808। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ Intel 16-bit microprocessor में Intel 80286 का। ये 1982 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर था। इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो था 8 मेगाहर्ट्ज का था। डाटा बस 16 था और एड्रेस बस 24 था। नेक्स्ट 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर में हम लोग जो देख रहे हैं कि Intel 80386 और Intel 80486। जो ये 386 आपको जो था वो 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर था और इसमें डाटा बस 32 बिट था और एड्रेस बस भी 32 बिट था। यानी इस इंटेल जो 803 में दोनों एड्रेस बस और डाटा बस दोनों 32 बिट था। नेक्स्ट है Intel 80486। ये 1989 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर ये भी है और इसका जो स्पीड था 16 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज के बीच में था। Again comes to the 64-bit microprocessor। 64-bit microprocessor में आप देख रहे हैं कि Intel Core 2, Intel Core i7, Core i5 और Intel Core i3। ये जो Core 2 था, Core 2 आपका 2006 में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर है और जिसका क्लॉक स्पीड जो था 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज, 1.2 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट ये आपका 2008 में इन्वेंट हुआ, 2009 में हुआ और ये 2000। इस तरह हम लोग कंप्लीट जो हिस्टोरिकल माइक्रोप्रोसेसर जो हम लोग देखे वो पूरा हिस्ट्री माइक्रोप्रोसेसर का ये है। तो आज हम लोग इस कंक्लूड करने से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो आज हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे 8085। थैंक यू।